Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to channel messages from Bhuvaneshwari Ma, as you might have seen on the title of the video. Yeah, let's get started with the reading. Hello everyone. मैंने अभी ऑफ कैमरा भी शफल किए हैं कार्ड्स, और हम एज यूजुअल हम ये डेक यूज़ करेंगे. सॉरी, उल्टी है. ये डेक यूज़ करेंगे. या लेट्स सी messages from Bhuvaneshwari Ma. Clear, concise, accurate messages, please. ओके, ये बहुत सारे हैं. कि ये दो लेंगे हम. दो अलग से कार्ड गिरे हैं, सो वी विल टेक दोज कार्ड्स. या सो ये दो कार्ड्स अलग से गिरे थे, तो मैं ये दो कार्ड लूँगी. या सो वी हैव गौरी देवी एंड कालरात्रि. ओके, लेट्स सी मोर. और क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास. ओके, आज तो बोलते ही रहे. वो कार्ड लेंगे हम. ओके, ये दोनों कार्ड्स लेंगे. भवतारिणी माँ एंड ओ माय गॉड, काली कालमा सनासिनी. मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास 42 नंबर कार्ड है, 43 है एंड 44 भी आ गया है. सो प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है. लेट्स सी मोर. Messages from Bhuvaneshwari Ma. Messages from Bhuvaneshwari Ma. Messages from Bhuvaneshwari Ma. Okay, this one. Bhairavi Yogini. And more. Okay, thank you. Oh shit, इतने तेज से कार्ड्स गिर रहे हैं. मैं कार्ड्स ही उठाती रह जाऊंगी पूरे टाइम. So we have the Anhata Kali and Kundalini Shakti card. और हम ये दो कार्ड्स भी लेंगे, which is we have the Mantra Shakti also and Kalika Tantrika. Okay, I would like to take some tarot cards also here from the Light Seers tarot deck. So let's see. Sorry. मैंने ऑफ कैमरा शफलिंग भी की है, और अब मैं फिर से ऑन कैमरा भी 2-3 बार शफल करूँगी to get messages. Yeah. Okay, we'll take that card. I don't know, आज मामू इतनी मेहनत के पर आ रही है, पर ठीक है. So we have the Knight of Cups and the 10 of Wands first.
Okay, let's see. Messages from Bhuvaneshwari Ma for our collective. क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे कलेक्टिव को माँ भुवनेश्वरी माँ? What message would you like to give? Okay. More. What message would you like to give our collective? Okay. ये 2 कार्ड्स लेंगे. What messages would you like to give our collective? Okay, the Two of Pentacles भी गिरा है, वो भी लेंगे. अब मैं एक साथ उठाऊंगी सारे कार्ड्स. Yeah, okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. I think that is all. Yeah. Okay, so मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखाती हूँ एक एक करके. So we have the Four of Pentacles. And 2 तो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ. Then we have the Two of Pentacles. Then we have the Eight of Wands. The Five of Cups. The Seven of Wands. The Hierophant. And 2 cards जो यहाँ पर गिरे हैं मैं नीचे से उठाऊंगी. Okay, so we have the Ten of Cups and the Page of Cups. And from the bottom of the deck for you we have the Three of Swords. Yeah. Okay. Now. Okay. So I think I would like to meditate on the cards a bit. I feel there is something more that I have to channel today. So just give me a moment, please. Okay, so hello everyone. So मैंने कुछ time लिया and I think मतलब it is my first time channeling Bhuvaneshwari Ma's energy and बहुत ऐसी energies होती हैं जिनको आपको it is important for you to feel them and actually then channel message and मुझे लगता है कि भुवनेश्वरी माँ की एनर्जी भी कुछ ऐसी है. Oh, thank you. And it is very similar to that. So very similar to नहीं मतलब वही है. So इसलिए मैंने कुछ टाइम लिया to actually feel her energy. And जैसे ही मैंने टैप इन किया the first message जो मुझे आया है वो ये है कि like she is called the cosmic mother of of our creative fire. क्रिएटिविटी जो हम सबके अंदर होती है उसको नर्चर करना, उसको अंडरस्टैंडिंग what option or what I would say मतलब अगर मुझे इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बताना है तो कौन से फील्ड है हमारी लाइफ में या कौन से एरियाज है एस्पेक्ट है जो वो क्रिएटिव वाली एनर्जी हमारी लाइफ में चैनल करवाते हैं. लाइक बहुत लोग के लिए क्रिएटिविटी इज़ इन द फॉर्म ऑफ देयर हॉबी. वो कोई एक पर्टिकुलर हॉबी करते हैं जो उनको
उनकी क्रिएटिव एनर्जी को चैनल कराने में हेल्प कराता है। बट देर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे बहुत लोग के लिए ऐसा होता है कि देयर करियर इज़ क्रिएटिव। सो उनकी क्रिएटिव फायर उनके करियर के जो एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, उनसे चैनल होती है। फॉर सम इट मे बी इट मे बी थ्रू द रिलेशनशिप्स एज वेल। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ क्रिएट करते हैं, और जस्ट स्टार्टिंग समथिंग which is close to your heart, and which sort of channels the creative energy. It can be any field or in any aspect of your life. तो यहाँ पर भुवनेश्वरी माँ उस क्रिएटिव फायर को यहाँ पर कहीं ना कहीं चैनल करवाने में हेल्प करती हैं। एंड यहाँ पर माँ जो मैसेज लेके आई हैं आज, वो ये है कि it's like she's saying that I am here, and I am very well present to help you with your creative energy, and helping you in nurturing it. And it is important for us, for us souls to actually be in that energy of surrendering to that flow जो हमें यूनिवर्स भेजती है। नाउ अब जो मैंने इतना बोला उसको अगर मुझे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाना है तो मैं ये कहूँगी कि इट्स लाइक कि ओके, मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे माइकल जैक्सन की जो मूवी है माइकल, अगर किसी ने वो यहाँ देखी है तो उसमें एक सीन है जहाँ पर माइकल जैक्सन वो पूल में होते हैं, एंड ही इज़ रियली चैनलिंग, और लाइक वो एक रिसेप्टिव मोड में थोड़े से दिखाई देते, जहाँ पे वो आराम से बैठे हैं ऑन क्या बोलते हैं उसको, जो पूल में जिससे डूबते नहीं है, जो भी होता है वो, तो उसके ऊपर वो बैठे हैं, एंड लाइक ही इज़ रेडी टू चैनल सॉन्ग्स और उनके लिरिक्स वगैरह, उनके कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आपको उस क्रिएटिव एनर्जी को, जैसे भी आपकी लाइफ में वो चैनल होती है, इन विच एवर एस्पेक्ट, उसको चैनल करने के लिए आपको एक रिसेप्टिव मोड में रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील जिन लोगों तक भी ये रीडिंग जा रही है, आई फील आप एक्चुअली में काफ़ी क्रिएटिव लोग हो, बिकॉज क्रिएटिव फायर को चैनल करने की आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो सकती है। एंड यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए इसलिए आ रही है बिकॉज बहुत ऐसी सोल्स होती है जिनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी चैनल करने की पोटेंशियल होती है, एंड those are those are the souls that actually find it difficult to really get that into themselves and like through themselves into this world. तो इसलिए शायद आपको भी ये इशू हो रहा है यहाँ पर, शायद तो क्या इसलिए ही आपको ये इशू हो रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि there is something about you being actively receiving that energy, and then like expressing or spreading that energy out in the world. ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब ये एक तरह से मैं कहूँगी ये कॉन्सिक्वेंस है ऑफ यू बीइंग रिसेप्टिव टू दिस क्रिएटिव एनर्जी। तो आपको यहाँ पर रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और रिसेप्टिव होने के लिए जो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर माँ बता रही है वो है सरेंडर करना। तो यहाँ पर ये भुवनेश्वरी माँ का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था यहाँ पर। उसके अलावा मुझे एक और एनर्जी आ रही है कि ओके आई थिंक ओके, तो यहाँ पर ना ओके आई एम हियरिंग द वर्ड प्लेजर, एंड रिगार्डिंग दैट वर्ड आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि
आई थिंक यहाँ पे इन सम वे आप लोग को बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए विथ एन ओपन माइंड, लाइक सॉरी, लाइक ओपन माइंड से मेरा मतलब है कि ओके, दैट इज वाह, ओके। सो इट्स लाइक जैसे ना, जैसे मैं क्रिएटिव एनर्जी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो क्रिएटिव एनर्जी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द S energy, if you're understanding, because I cannot really say it on YouTube. So yeah, it is connected to that S energy, and you know that S energy is actually sacred, but nowadays, you know, people have actually made it a lot, you know, like there is a lot of taboo around it, there is a lot of shame around it, and you know, yeah, like it is pretty distorted that way. But यहाँ पर क्रिएटिव एनर्जी को एस एनर्जी से भी जोड़ा जा रहा है, बिकॉज यू नो it is because, you know, I think the reason is pretty simple, because you know that is such an advanced thing. मतलब अगर आप सोचे तो like हमें ऐसा लगता है कि यार इट इज़ सो नॉर्मल टू लाइक गेट प्रेग्नेंट एंड देन हैव अ बेबी, बट you know it's like that is a pretty natural and you know very beautiful formula, or I would say, you know, formula तो मैं ऐसे बोली, but I would say like a phenomena. तो उसको भी कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव एनर्जी के एस्पेक्ट में जोड़ा जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर मैसेज इतना है कि आपको इस you know that I would say, okay, just give me a moment. ओके, सो यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि आपको अपनी एस एनर्जी को समझना है थ्रू द लेंस ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, लाइक यू नो, मतलब समझना क्या है अब एस एनर्जी को। इट्स लाइक कि ओके, सो यहाँ पर आपको अपनी एस एनर्जी को इन सम वे ओन करना है। नाउ एस एनर्जी को ओन करना क्या है, बाय, जैसे मैंने कहा कि पहले आपको अपनी एस एनर्जी को समझना है, देन यू हैव टू ओन इट। नाउ हाउ कैन यू ओन इट? सो अबाउट दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि you know the S energy is not only about, you know, the word S. It is also about how you can be you know, how you can be that self, you know, जो आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में वर्थ फील कराता है, आई वुड से। सो यहाँ पर जो मुझे वाइब आ रही कि आपको यहाँ पर ना ऐसी चीज़ें या ऐसी आई वुड से हॉबीज़ और सम एक्टिविटीज़ को यू नो जानने की ज़रूरत है, जो आपको कहीं ना कहीं वर्थफुल या कॉन्फिडेंट फील कराता है। एंड आई फील वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट वर्थ और कॉन्फिडेंस विद इन यू, आप यू नो आप कहीं ना कहीं यू नो अपनी एस एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा समझने लग पड़ेंगे। एंड यू नो वंस दैट हैपन्स, आई फील आप यू नो लाइक आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ने वाली है। यस, यहाँ पर इट्स लाइक अगर आपको यू नो मेरी पूरी वीडियो का यहाँ पे सार चाहिए, मतलब लाइक a complete, I would say, you know, like sum up, तो आई थिंक सेक्रल चक्रा के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज सेक्रल चक्रा टॉक्स अबाउट प्लेजर, टॉक्स अबाउट क्रिएटिव एनर्जी, टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन चैनल योर sensual energy as well. तो आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प यू हियर, बिकॉज यहाँ पर जो लोग भी देख रहे हैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंड से क्रिएटिविटी शब्द को समझने की ज़रूरत है। एंड आई फील ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल नहीं समझ रहे, मुझे लग रहा है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप
अभी काफ़ी ज़्यादा उस क्रिएटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में चैनल करना शुरू कर चुके हैं, एंड आई फील अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ये मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है, बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसमें मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी अ लॉट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मतलब मेरे इतने शायद वॉन्ड के कार्ड आए भी नहीं है, बट मेरा वॉन्ड्स वाले कार्ड पर बहुत आई वुड से नज़र जा रही है। या एंड वी हैव द ऑरेंज कलर एज वेल, so yeah, orange color is the color of sacral chakra. Yes. Okay. एक और मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है, आई थिंक इट इज़ अबाउट रियली, आई थिंक यहाँ पर ये भी है, आई थिंक ये मैंने पहले कह ही दिया, बट अगर आपको कहीं ना कहीं अराउंड, जैसे हम अभी एस वर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आपको उसके अराउंड, इफ़ यू हैव एनी टैबू अराउंड इट, आई डोंट फील कि आपको उस वर्ड के अराउंड कोई टैबू फील करना चाहिए, बिकॉज आई मीन आई अंडरस्टैंड सोसाइटी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके दे आर वेरी क्लोज माइंडेड, एक बहुत ही नैरो माइंडेड माइंडसेट यहाँ पर है इन चीज़ों को लेकर। बट इफ़ यू आर, अगर आपको कहीं ना कहीं शेम भी फील होती है ना इस चीज़ को लेके, यहाँ पर भुवनेश्वरी माँ बस इतना कह रही है कि इफ़ यू फील शेम अराउंड इट, you will not really be able to channel your S energy also, and also your creative energy. Yes, because creativity channel करने के लिए एक open mind होना बहुत ज़रूरी है, फियर होना, मतलब फियर ना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइंड के अंदर एक फियर है, अगर आपके माइंड के अंदर शेम है about some things and particularly about S, then you might not be able to channel your authentic creative energy. So यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि आई थिंक ओके, अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा सोचते ना कि मुझे यहाँ पे या मुझे कुछ सेट ऑफ कलर्स ही पहनने चाहिए, लाइक मे बी आई शुड वेयर ओनली दिस कलर और समथिंग, आई थिंक यहाँ पर माँ आपको कह रही है कि आपको कहीं ना कहीं वैरायटी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मतलब अगर यहाँ पे कोई इंसान सच्ची में सोच रहा है कि कि आई शुड ड्रेस अप ओनली अ सर्टेन वे बिकॉज दिस सूट्स मी, आई फील यहाँ पर माँ आपको बोल रही है कि लाइक यू आर लिमिटलेस इन एवरीथिंग एंड सो आर यू इन दिस एज वेल। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आई वुड से ओपन रहने को कहा जा रहा है, बिकॉज एवरी कलर चैनल्स एंड एनर्जी, एंड आई फील जितना आप उस वैरायटी ऑफ कलर्स या वैरायटी इन एनीथिंग आप चैनल करते हैं अपनी लाइफ में, आप आप आई थिंक उतने ज़्यादा वर्सेटाइल होते जाएंगे इन इन चैनलिंग एनर्जीज, मुझे यहाँ पे लगता है। एंड ऑल्सो एक्सप्रेसिंग इट, बिकॉज हम चैनल कर रहे हैं तो हमें एक्सप्रेस तो करना ही होगा। तो यस, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। Okay, any other messages, Ma? Okay, so I think that is all I'm getting for you guys today for the collective. So if you liked this reading, please like, share and subscribe to my YouTube channel. And also if you like how I read cards, you can connect to me through my email ID to like if you're wanting a personal reading from me. So yeah, and again it is a general reading, so please take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, please really subscribe to the channel like it, or you can also comment to claim
the energy here, because energy exchange is important. मतलब अगर आप लाइक भी नहीं कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे तो वो एनर्जी आप तक रियली एक्सचेंज नहीं हो पाएगी. So yeah, just wanted to say that. And thank you. I shall see you in my next reading. Until then, take care. Lots of love. Bye.